Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today the video is related to bioinformatics and the title of my today's video is in silico vaccine designing, in which I will show you that how structure refinement is performed and how we will check its stability analysis. As you all know that I have started a video series in which I am showing you, I am giving you a hands-on training on in silico vaccine designing, that how we will compose a vaccine. Uh, in the previous videos, I have discussed that the structure prediction. In the last video, I have shown you that how you will predict the vaccine structure from your obtained amino acid sequence. This was the entire methodology flow. Here we have done the structure modeling. In the previous videos, we have started from the very beginning. I have given you the introduction of the entire course. Then it was data retrieval, homology check, and all was, if you haven't watched those videos, so I recommend those videos, that first watch those videos. So you will then understand that what basically this structure refinement and structure stability analysis means, okay? So I'm not going to that detail about the previous recap, but here is the part 11 of the today's series. So here today we will perform the structure refinement and stability analysis of the structure that we have obtained from the previous video. Okay, so let's start with the practical. Okay, so for structure refinement, we need a vaccine, we need a protein structure. Okay, so I'm having a protein structure. This is my protein structure. Okay, vaccine or any type of protein structure you can take that you have obtained through the structure modeling. Okay, so the tool that is used for structure refinement is Galaxy Refine 2. Okay, so just write it here, sorry, just type it here, then go to the first link. उसके बाद फिर ये पेज आ जाएगा, ठीक है? और what will you do? You just click on this, choose your file from where it is. For example, this is our file, and just click on that file, open it, and then just submit it. Okay, so it will take about 1 to 2 hours, and then it will give you the result. Okay, so if we look to us the report, as I'm not waiting for the report. Okay, so this is a typical example of it. So इसमें क्या होता है कि अभी ये जो है, जो हमने स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया था, उसको इसने फर्दर रिफाइन किया है। रिफाइन मींस के इसमें जितने भी क्लेशेस थे, जब आईटेस्टर टूल ने हमें जो स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया था, तो इसमें काफ़ी नॉइज़ेस होते हैं, काफ़ी क्लैशेस होती है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज़ करके हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज नहीं करता है, लेकिन उसकी ऐसी अरेंजमेंट करता है, ठीक है, कि उसके आपस में क्लैशेस ना हो, ठीक है, मिनिमम क्लैशेस हो। उस क्लैशेस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इसी वीडियो में हम करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस में, मैं आपको क्लैशेस जो है फिर बता दूंगा, ठीक है। तो ये मॉडल 1 2 3 4 5 अप टू 10 मॉडल्स ये आपको दे देते हैं, ठीक है। मॉडल 1 जो है वो सबसे एक्यूरेट होता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ रामा फेवर्ड रीजन्स की बात करें, तो जब हमने जो प्रोटीन स्ट्रक्चर सबमिट किया था, तो उसकी रामा फेवर्ड रीजन 95.8 थे, लेकिन जब इसने रिफाइनमेंट की तो ये 99 तक पहुंच गया। अब रामा फेवर्ड क्या है, ठीक है, मैं आपको ये समझाऊंगा। बाकी जो RMSD है या GTA HA है या मोल प्रोबेबिलिटी, उसमें हम नहीं जाते, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं आपको रामन फेवर्ड ये बेसिक कंसेप्ट इसकी मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 95 से 99 हमारा ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था, उसकी रामा फेवर्ड रीजन 95.8 थी, लेकिन स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट के बाद 99.0 हुए। तो इस तरह है कि इसने इस स्ट्रक्चर की नॉर्मलाइजेशन कर दी, ठीक है। वो जितने भी पॉसिबल क्लैशेस थे उसको मिनिमाइज किया, इसकी मिनिमाइजेशन की, ठीक है।
तो इसके बाद आपने इस मॉडल पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस मॉडल को फिर आपने आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन से वो आई टेस्टर का से जो प्रोटीन स्ट्रक्चर आई थी, ठीक है, वो ये थी। लेकिन अभी जो रिफाइनिंग के बाद ये स्ट्रक्चर आई है मॉडल नंबर 1, तो आपने अपने थीसिस में, अपने रिसर्च पेपर्स में उसी मॉडल को फिर आगे ले जाना है, ठीक है, और उसकी जो है स्ट्रक्चर्स और उसको आगे डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये गैलेक्सी रिफाइन थी। अभी हमने देखा है कि अब हम देखेंगे इसके बाद के अभी जो है रिफाइनमेंट तो हो गई, लेकिन अभी रिफाइनमेंट हम देखेंगे किस तरह, ठीक है, कि किस तरह रिफाइनमेंट हुई है, ठीक है। तो इसके लिए एक टूल यूज होता है, ठीक है, इसको पीडीबी हम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरह करता हूँ कि इसको जो है पीडीबी, ये आप टाइप करेंगे, ठीक है, और ये इसकी इंटरफेस है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपने जनरेट को क्लिक करना है, ठीक है। जनरेट क्लिक करने के बाद आपने चूज फाइल करनी है, और जो फाइल गैलेक्सी रिफाइन से आई थी, ठीक है, उसी को लेनी है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर नहीं लेनी जो आई टेस्टर से स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हुई थी, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी रिफाइन मॉडल आपने लेना है, ठीक है, और अपलोड करना है, ईमेल एड्रेस देनी है। ये भी तकरीबन 2-3 घंटे लेता है, आपको फिर जो है रिजल्ट दे देता है, ठीक है। रिजल्ट किस तरह होता है, अगर हम इस एग्जांपल पे क्लिक करें, 1 के FB पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये जो है इसकी इस तरह की रिजल्ट्स आती है, ठीक है। इस तरह की रिजल्ट्स में हम जो देखते हैं वो हम प्रोजेक्ट देते हैं, रामाचंद्रा प्लॉट देखते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट। अभी ये रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, ये हमें स्टेबिलिटी एनालिसिस भी दिखाती है और भी बहुत कुछ दिखाती है, लेकिन हम मैं सिर्फ स्टेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर बात करूंगा, ठीक है, कि ये क्या चीज है। रामाचंद्रन प्लॉट ये कहता है, ठीक है, कि ये एक प्लॉट होता है, ये जो ये रेड रीजन होती है, इसमें रेड रीजन, डार्क ब्राउन रीजन, येलो रीजन और व्हाइट रीजन होती है, ठीक है। तो ये कहना है जितने भी अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इस रेड रीजन में हो तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और इसके बाद जब रेसिड्यूज ब्राउन में हो तो भी स्टेबल है, येलो में हो और व्हाइट में हो तो स्टेबिलिटी फिर कम होती है। तो अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखें तो मोस्ट फेवर्ड रीजन, इस तरह मैंने रामा फेवर्ड की आपको बताई थी उस जो गैलेक्सी रिफाइन में, ये वो रामा फेवर्ड रीजन है, ठीक है। मैंने तो वही प्रोटीन नहीं ली, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। अभी से इसकी रामा फेवर्ड रीजन्स को अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, तो 84.1% जो है इसकी रामा फेवर्ड रीजन है। मीन्स के 100% में 84.1% जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है वो रेड रीजन्स में लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल अलाउड रीजन है, तो 15% डार्क ब्राउन रीजन्स में लाई कर रही है, और 0.7% जेनरसली अलाउड रीजन जो येलो रीजन है उधर लाई कर रही है, और डिसअलाउड रीजन जो है वो सिर्फ 0.2% है, ठीक है। तो इसका मतलब है जी, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्टेबल है, ठीक है। 80 से 84 से आगे जब जितने भी स्ट्रक्चर होंगे मोस्टली 90-95, तो वो काफी स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ये देखिए इधर साई डिग्रीज है और ये 5 डिग्रीज है, ठीक है। अब मैं आपको इस प्लॉट की जो है अहमियत बताता हूँ कि असल में ये क्या करता है, ये एंगल्स क्या चीज है, और ये तो हम एक रेजिड्यूज को फॉर एग्जांपल हमने इस रेजिड्यू को लिया, ठीक है, तो उसकी फाई एंगल जो है वो 90 है, सॉरी साई एंगल, और फाई एंगल जो है ये -80 और -135 के करीब। फॉर एग्जांपल ये -1 जो है 175 कर देते, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये फाई एंगल्स क्या होते हैं, ये साई एंगल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे दो अमाइनो एसिड आपस में बाइंड होते हैं, ठीक है, तो इसकी एक सेंट्रल कार्बन होती है, एक अल्फा कार्बन होती है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन जो है एक तरफ उससे NH2 ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, और एक तरफ उससे COOH ग्रुप अटैच होता है, कार्बोजाइल ग्रुप और अमाइन ग्रुप अटैच होता है। नीचे कार्बन होता है और ऊपर जो है हाइड्रोजन होती है, ये एक अमाइनो एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो जो अल्फा कार्बन है जो ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो ये साई एंगल है और ये फाई एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल्स को, इस बॉन्ड्स को, जो ये बॉन्ड्स जितने एंगल्स में होते हैं उसको फाई और साई एंगल कहते हैं। अब मैं आपको मजीद समझाता हूँ कि ऐसा क्या मतलब है, सिर्फ आपने फाई और साई एंगल के कंसेप्ट को जहन में रख के, ठीक है, कि इसे क्या ये किधर होते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको, इस क्लैशेस को और इस फेवर्ड और डिसअलाउड रीजन्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपने रामाचंद्रन प्लॉट एनिमेशन में जाना है, ठीक है, और उधर आपको इस तरह की जो है इंटरफेस मिलेगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये हमारे साथ ये जो बीच में ये ब्लैक राउंड कलर बॉल है, ये असल में अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये क्या है? ये अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन है, सही है, ये अल्फा कार सॉरी, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, साई एंगल पे क्लिक किया तो ये साई एंगल है, और इधर क्लिक किया तो ये फाई एंगल है, ठीक है, फाई और साई, तो ये NH2 वाला है, ये COOH वाला है, ठीक है। इस तरह करते हैं। अब इस तरह करते हैं कि हम इसमें क्लैशेस देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि इस फाई एंगल को रोटेट करते हैं, तो -120 डिग्री पर अगर हमने इसको रोटेट किया, तो अब इस इधर देखिए, इसकी जो आर ग्रुप के साथ थोड़ी सी क्लेश आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको मजीद कर दें तो और ज्यादा क्लेश आ रही है। यही वो क्लेशेस है जो मैं आपको समझाना चाहता था, कि ये जो गैलेक्सी रिफाइन होता है वो कोशिश करता है कि इस क्लेशेस को मिनिमाइज करे, इस एंगल्स को थोड़ा सा रोटेट और मिनिमाइज करे, कि इसमें मैक्सिमम क्लेशेस जो है उसको खत्म करे। इसे गैलेक्सी रिफाइन कहते हैं, ठीक है। और रामाचंद्रन प्लॉट भी यही कहता है, अगर मैं आपको इधर दिखा दूं, तो अगर इस रीजन में, अगर इस अमाइनो एसिड का, अगर रेड रीजन में जितने अमाइनो एसिड है, तो इसकी जो फाई और साई एंगल है उसमें जो क्लेशेस है वो बिल्कुल मिनिमम है, ठीक है। अगर इस तरह कर दे, ठीक है, तो क्लेशेस जो है बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो रेड रीजन हमें ये कहता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो मिनिमम और बिल्कुल नो के बराबर जो क्लेशेस हो गए, तो इधर वो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसको मजीद हम रोटेट करें तो देखिए, क्लेश अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बन रहा है, ठीक है, अभी फिर खत्म हो रहा है। तो ये वो एंगल्स है, मैं फाई एंगल को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, फाई एंगल को मैं रोटेट कर रहा हूँ। अब देखो क्लेश क्लेश फिर शुरू होगा, ठीक है। तो शायद ये येलो रीजन में अभी चले जाए, ठीक है। ये वो अमाइनो इसकी एंगल्स जो है तब्दील हो रही है। अब इस तरह कर दे कि साई एंगल को रोटेट कर दे कि वो क्या करता है, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये भी काफी जो है क्लेश शो कर रहा है, ठीक है। तो इधर से खत्म, थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है, इधर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लेशन मैं आपको समझा रहा था कि ये जो रेड रीजन में होंगे तो उसमें का क्लेशेस काफी कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। जो ब्राउन रीजन में है तो ये क्लेशेस काफी कम होंगे, जो येलो रीजन में है तो क्लेशेस होंगी, और व्हाइट रीजन में काफी। अब इस वेलिन को देखे, अगर इसकी फाई एंगल 135 है और इसकी साई एंगल -45 है, तो इसमें क्लेश मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा था। तो इसी तरह अगर हम इस रामाचंद्रन प्लॉट को देखें, तो इससे हम इस ये जो है इसको जो इससे रिजल्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी एनालिसिस है और स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट, तो ये आपने करनी होगी। और ये रामाचंद्रन प्लॉट, और ये आपने अपने थीसिस में, अपने जो है प्रोजेक्ट्स में, इसको इस स्ट्रक्चर को जो है आपने कॉपी करके पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रोटीन आपने प्रेडिक्ट की थी, वो ये उसकी जो है स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट हो गई। और उसके बाद हमने इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस चेक की। स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए और टूल्स भी मौजूद होते हैं, प्रोसा है, वेरीफाई 3D एडीके और प्रोचेक है, वो सारे भी स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो है ये रामाचंद्रन प्लॉट जो है, ये काफी इन है, और ये काफी जो है शो करता है, ठीक है, कि ये प्रोटीन स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, ठीक है। आगे की वीडियोस में मॉलिक्यूलर डॉकिंग और इंटरैक्शन एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन, और फिर लास्ट पार्ट जो होगा वो इन सिलिको वैक्सीन डिजाइनिंग होगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और IAS सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इस सीरीज से आप अपने BS के प्रोजेक्ट्स जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड है, या MS के प्रोजेक्ट जो इन सिलिको वैक्सीन डिजाइनिंग पे मुश्तमिल है, तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट पाइपलाइन को यूज करके आप इन सिलिको वैक्सीन डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई मदद चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, या आप अपना प्रोजेक्ट खुद नहीं कर सकते टाइम की वजह से, क्योंकि आपका टाइम मैनेज नहीं होता, तो यू कैन जस्ट ईमेल मी। मेरा ईमेल जो है वो
चैनल पे मौजूद है, ठीक है। आप मुझे ईमेल कर दें, ठीक है, मैं अपना जो मसला है, अपना प्रोजेक्ट वो मुझे बता दें, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगा, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो समझ आ गई है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।